Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of Say It All with Iffat Umar. जैसा कि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत नए लोग आ रहे हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना करियर बन चुका है, नए लोग आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी चंद ही ऐसे चेहरे होते हैं, चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो एकदम ठक करके आपको लगते हैं कि ये कौन है। मैं शो बिज़ में तकरीबन कोई 30-35 साल से हूँ। भाई एक लड़की रिसेंटली मुझे इतनी इम्प्रेस किया है, उसकी एक्टिंग, हर एफर्टलेसनेस, कि इतने मशहूर ड्रामे में इतनी बड़ी कास्ट के साथ शी स्टूड आउट। जी हाँ, मैं ड्रामा नूरजहान की बात कर रही हूँ, जिसमें सबा परवेज़ ने वो परफॉर्मेंस दी है कि मिले या ना मिले सारे अवार्ड्स उनके हैं। और ऐसी कास्ट के सामने एक लड़की जो बहुत निकल के सामने आई है, हु रियली इम्प्रेस्ड मी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, वो है सफ़ीना का जिसने कैरेक्टर किया, अलीना अब्बास शाह। राइट नाउ शी इज़ विद मी और आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। हेलो स्वीट हार्ट। Hi, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। It's been an honor. Seriously? Such an honor. I thank you so much. And beta. you look beautiful. I think I told you that the moment I saw you, but I need to say it on camera now. Thank you. Yeah. और तुम्हें देख के मुझे ये लगा है कि अभी तक कैमरे ने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं की। You are stunning. I mean, I think you're a model material. I mean, look at you. Acha, a lot of people don't think that. अच्छा, give me a chance then. I mean, all the chances are yours. Done. अच्छा चलो, बताओ अपने बारे में। अलीना के कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचे? Acha, you want me to take you all the back to my childhood? Okay, fine. I have grown up in an army setup. My father was a pilot. तो हमने ज़्यादा अपना बचपन 7 to 8 years गुजरावाला कैंट में गुजारा। उसके बाद जब हम सिविलियंस मतलब सिविल लाइफ में आए तो वी मूव टू लाहौर एंड देन लेटर ऑन वी मूव टू इस्लामाबाद। वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन की। देन वी केम बैक, यहाँ पे आई स्टडीड इन बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। आई डिड माई बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद आई वॉज इन अ फ्यू मतलब फॉर अ फ्यू ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट की भी जॉब्स की। आई वॉज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, आई वॉज अ टीचर एज वेल एट सम पॉइंट, but nothing really clicked with it. I always wanted to be an actor. लेकिन बस I felt कि उस time पे I was very gullible. तो then me and Imran Raza Kazmi, we connected via Instagram, and then he asked me to send him a few auditions, and it was a process of 2 years. And then COVID happened, और उसी दौरान I got married as well. So I didn't really think anything of that, because I wasn't really sure if any opportunity is going to come my way or not. So right after I got married, a few months into my marriage, I get a call from Imran Raza Kazmi that we have a role in mind for you. And that was literally 4 or 5 days after my 29th birthday. Oh my God. Yeah. And I was already shaking. I was like, अच्छा पता नहीं क्या होगा. And then उसके बाद he narrated ये करियाना का character to me, and he's like, you have 3 days to pack. And I was like, you haven't given me enough time. And he's like, इसी तरह ही होता है, ऐसे ही मौके आते हैं फिर ऐसे ही चले जाते हैं, तो देख लो. Now I was, like he had given me an ultimatum. So I think that is where my husband stepped up. He's like, you want to do this? You should. And then you should go. Wow. And I think if it wasn't for him and his support, I wouldn't have been able to pull this off, because we shot that drama half a year, 6 months. हमने उसे constantly shoot किया, and in that process a lot happened as well. Personal front पे, I lost my nano, and I was very close to her. So that took a toll on my mental health as well, because anything and everything I do in life is for her. So just imagine losing that during the shoot of 22 Kadam. It was too much. So अब मुझे ऐसा लगता है कि whatever I do in my life is basically an homage to her. So when 22 Kadam came out after her death, it was
something else. So yeah, that's how my journey started. And उसके बाद फिर I did कुछ अनकही with Nadeem Bhai. And after कुछ अनकही, I was asked to do this drama Noor Jahan as Safina. So yeah, that has been my journey so far. ओके Yeah. सो नानी नहीं देख सकी तुम्हारा पहला प्ले. ओफ. और आज तक वो जो गिल्ट है ना, और वो जो एक रिग्रेट वो जो होता है कि यार आई विश शी वॉज एबल टू सी दैट. शी वॉज रियली एक्साइटेड. आई मीन शी इज़ बिन माई चैम्पियन सिंस डे वन एंड आई कैन वाउच फॉर इट. I can never love anyone the way I have loved her. And she cannot love anyone the way she has loved me. इतना selfless किसी से भी जो मोहब्बत है ना, कैसे करते हैं वो मैंने उनसे सीखी थी. तो अब वो नहीं है तो बस it just doesn't feel real. So yeah, it's a little emotional for me, like to this day. It's been 3 years, but the wound it just does not heal. Yeah. It does get better, don't worry. It does, but the void वो जो होता है ना, देखा होगा उन्होंने. सब ये कहते हैं कि बहुत ऊपर से खुश हो रही होंगी, लेकिन I don't know, it hurts. But wherever I am in life, I feel like she's looking down on me, smiling. Why was your relationship so special with your nani? Were you the only grandchild? I was no, not the only grandchild. I think she loved me a lot. I was my mother and my father's firstborn. So she was very protective of all the firstborns in the family. So I don't know, bachpan se, I don't know if I was just really close to her. Although she was strict and थोड़ी disciplinarian थी, लेकिन उनको easy और उनको soft करने में ना मुझे बहुत effort लगी. I just wanted to give her my all. Like I loved her so deeply. तो वो जैसे जैसे वो उनको अंदाज़ा होता गया ना कि ये जो है ना ये मुझे छोड़ती नहीं है, ये मेरा पीछा पकड़ के रखती है. शी इज़ ऑलवेज लाइक टेकिंग मी एवरीवेयर. शी कैंसल्स हर प्लान्स. शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद मी. शी वांट्स टू स्टे विद मी. तो वो जो एक बॉन्ड होता है ना, इट्स जस्ट आई डोंट नो, आई कुड नेवर एक्सपीरियंस दैट बॉन्ड विद एनीवन एल्स. नॉट इवन विद माई ओन पेरेंट्स. आई फील लाइक उनको भी ये पता है कि द बॉन्ड दैट आई हैड विद हर वॉज इंसेनली स्पेशल. It reminds me of my mother, late mother, with my daughter Noor Jahan, and my mother were very close as well. Very close. I mean, जो मेरी बेटी आज है वो मैं सारा credit अपनी माँ को देती हूँ. She took care of her because I was working and you know. तो और मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची. I'm sure. हाँ चलो आते हैं अब हम मौजूदा उस पे. देखो एक्टर तो आजकल हर कोई बनना चाह रहा है और हर एक वाकई में बनना भी चाहता है. बिल्कुल बनना मौका नहीं मिले दिल में सबकी एक ख्वाहिश होती बिल्कुल. है मशहूर होने की, पॉपुलर यू नो एक्टिंग. सो डू यू थिंक कि ये इसमें तुम्हारे ऑडिशंस का ताल्लुक था या लक थी? नहीं, auditions, definitely. Kiryana did not come easy to me. Like 2-2.5 साल I was back to back auditioning. और उसके बाद फिर लेकिन एक मेरी चीज़ है इफ़त, मैं ज़्यादा I don't obsess over things. If it is meant to happen, it will happen. Like if I start thinking about it too much now, I'm going to literally destroy my peace of mind over that. So whatever is meant for me, it will happen. It will come to me. I don't have to force it. लेकिन genuinely, truly, इसमें मेरी luck भी है, and I'm extremely blessed to have landed such roles that have made a mark. Not everyone gets to say that. Exactly. So I mean, I don't take that privilege for granted. And especially मुझे ये चीज़ ज़्यादा इसलिए हिट करती है क्योंकि जब मैं 22 कदम को शूट कर रही थी तो I had a few जो आपके जूनियर कास्ट होती है, जब मेरी उनसे बात हुई तो दे वर लाइक कि हमारा भी बड़ा दिल करता है कि हम भी कैमरा के सामने आए और आगे खड़े हुए, जिस पे आई आस्क्ड देम कि इंशाल्लाह व्हाई नॉट वन डे, क्यों नहीं. तो दे सेड कैसे, हमें कोई चांस ही नहीं देता और जो देना चाहता है वो हम एक्सप्लॉइट करता है. तो फिर वहाँ पे जाके आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे
reply करो इस चीज़ का, like how should you respond back to something like that, because it really leaves a bad taste in your mouth and you're just like talent में उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है, बोल वो भी बहुत अच्छा रहे हैं, बस opportunities का difference है. You think background matters? It does, I think. Unfortunately. लेकिन there are so many actors we see जिन्होंने अपने background regardless जो भी हो मेहनत करके वो एक जगह पहुंच गए हैं, लेकिन I feel it still gets it's not that easy for people. I mean आपकी कहीं ना कहीं आपकी privilege, आपकी education, it does give you an edge over the rest. Yeah, I agree. Yeah. I totally agree with that. अच्छा जी, मिल गया चांस. पहले दिन जब पहला सीन किया, क्या? You want to know the story? Yes. It's really interesting. So we shot the first day. The next day I had violent food poisoning. Yes. And I was throwing up like anything. मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और उसके बाद उनको पूरा दिन की शूट कैंसिल करनी पड़ी थी. उस टाइम पे कोविड से भी हम फ्रेश निकले थे और तब भी कोविड केसेस थे. 2021 was not so nice. We had, you know, things going on. So I remember my best friend Fiza Abid, वो PCB में भी मैनेजर हैं और वो एक स्पोर्ट्समैन भी हैं और वो फीमेल क्रिकेट टीम को भी वो मैनेज करती हैं. सो शी इज़ माशाल्लाह अमेजिंग. तो वो बड़ा क्लोजली इधर काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ. आई वॉज वेरी लकी एंड हम दोनों को नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट पे हम दोनों साथ हैं. सो इट वॉज शी सच अ गॉड सेंट. तो उस टाइम पे व्हेन शी फाउंड आउट दैट आई वॉज सिक, तो वो आई और उन्होंने कहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन. आई वाज लाइक आई एम नॉट वेल, आई थिंक आई नीड अनदर डे. तो द पीपल केम, लाइक द पीपल फ्रॉम प्रोडक्शन एंड ऑल, दे वर लाइक आई डोंट थिंक कि हमें ये कैरी करना चाहिए, यू शुड गो होम क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक दीज रिस्क्स. एंड राइटली सो, दे डिडंट वांट टू पुट माय हेल्थ ऑन द लाइन फॉर देयर वर्क. नाउ Fiza took it very personally. She's like, and she started crying. She's like, no, just if there is anyone who is going to be Kiryana, that is. Oh my God, they said के मतलब बदल दे. हाँ, replace कर. Oh, I thought कि you can go and rest. No. They asked me to go home because they were like COVID भी इतना ज़्यादा है अभी, क्योंकि और बात सच भी थी क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स में भी जा रहे थे तो हर जगह कोविड वार्ड्स बने हुए थे. पूरा हॉस्पिटल जो था वो कोविड से भरा हुआ था. And where were you shooting? We were shooting Islamabad. Okay. So I mean obviously they were not wrong. And मैंने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि obviously I was away from home, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, थोड़ी सी होम सिक भी थी, थोड़ी सी ब्रैटी भी हो रही थी मैं कि अच्छा नहीं, I feel really lost, I want to go back home. So that is where my best friend stepped up. She's like, nobody is going to say anything to her. She is not going anywhere. Wow. Kiryana यही play करेगी और कोई नहीं करेगा. This is your dream. How can you be such a brat about it? अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, तुम्हें थोड़ी सी IV लगवाती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी. You cannot throw your dream away. You've dreamt about this all your life. And she's crying non-stop. And she's like, नहीं, don't be a brat. मैं साइन करती हूँ, जो भी है सारा कुछ मुझे बता दें, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. When I saw that कि there is someone who wants this more than me, I don't know if मेरे अंदर कहाँ से strength आई. I was like, नहीं, nobody is going to replace me. I'll be on set tomorrow. और रात के 12 बजे तक वो लड़की मेरे साथ हॉस्पिटल्स में फिरती रही है कि किसी तरीके से आप इसको बस ठीक कर दें. एंड शी मेड श्योर कि ये प्रोजेक्ट मैं पूरा करूँ. सो आई मीन you do need such people who see it in you before you could see it in yourself, or who believe in you more than you believe in yourself. If it wasn't for that girl, I wouldn't have been here. So I mean मुझे उसको ये appreciate करना बहुत ज़रूरी है. It's all I because think of it's Fiza. exemplary. It's exemplary. You know, women empowering other women. I Yeah. think this is the best thing, and this is what we need in this world now. Yeah, I mean I think हमने बहुत ज़्यादा ना औरतों को isolation की तरफ हम ले गए हैं. We started isolating them from all of these relations. मेरे तीनों projects में सबसे ज़्यादा मेरे लिए, now that I think about it, camaraderie है औरतों की. I mean आप 22 कदम में देख लें, you will have to stop pitting women against each other. Yes. It's a very lonely place to be. It is, and I really hope, and I have so Yeah. much hope in your generation. Inshallah, yeah. That things are getting better, but I would like to know, are they?
If you want to ask me personally, 90s के जो kids हैं ना, वो ना 3 में ना 13 में अभी भी बेचारे, वो क्योंकि इतने मतलब होता नहीं कि आप रिग्रेशन से थोड़ा प्रोग्रेशन की तरफ जब आ रहे होते हैं, हमने वो भी टाइम देखा जब हम बात नहीं कर सकते थे, हमारे ओपिनियन को मतलब इट डिडंट मैटर व्हाट वी हैड टू से, वी वर टोल्ड नॉट टू बी ओपिनियनेटेड, वी वर टोल्ड टू बी क्वाइट. अगर हम अपना इफ़ यू वुड स्पीक आवर माइंड, हम बागी हैं, हम रिबेलियस हो जाते हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. फिर हमने वक्त ये भी शिफ्ट होते हुए देखा, टेक्नोलॉजी जब आई कि यार आपका किस बात का आप हमसे झाका रख रहे हैं, लाइक यू नीड टू टॉक टू अस अबाउट दीज थिंग्स, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो वो भी हमने शिफ्ट होते हुए देखा है कि नैरेटिव भी शिफ्ट होते हैं. मुझे लगता है कि जो अब की जनरेशन जो आई है, ये जो व्हाट डू यू कॉल दिस जनरेशन, हम तो मिले जेन ज़ी, या दे आर वेरी रूथलेस यार, इन अ गुड वे, लाइक दे नो देयर माइंड. हम अभी भी ना थोड़ा लिहाज कर लेते हैं कि हम चुप हो जाते हैं कि हमें होता है नहीं यार यहाँ पे नहीं इतना बोलो, चलो रहने दो, लेकिन वो नहीं रखते, वो कहते हैं नहीं, से इट लाइक इट इज़. सो आई थिंक दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी ब्रेव. शायद इनके थ्रू ही हम सब थोड़ा सा ठीक हो जाएं. हम अभी आई एम नॉट सो श्योर, लाइक सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि इतना ही ज़्यादा एक्सपोजर होने के बावजूद भी आई फील इफ़त वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. लेकिन उसकी एक अपसाइड ये है कि पीपल आर मोर सेल्फ अवेयर नाउ. आई मीन यू कांट फूल एनीवन एनीमोर. You sure? आई फील कि लाइक अब हर कोई चीज़ ना, मुझे लगता है कि अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही है. मुझे ये लगता है कि जहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंसील करते थे ना फैक्ट्स, मतलब अब हर चीज़ इट्स आउट इन द ओपन. लाइक यू कांट फूल पीपल टू दैट एक्सटेंट नाउ. आई मीन यू कैन फूल पीपल बट नॉट टू दैट extent. Like people will find out sooner or later. वो वाला एक्सपोजर अगर हम आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें, वो नहीं था. सब कुछ ओपन में तो आ ही जाता है, as you said, लेकिन ऐसा नहीं लगता अलीना कि अब सबको सब कुछ पता भी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ये डाउन साइड है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. एक्सेप्टेंस आ गई है. ये तो है, एक्सेप्टेंस आ गई. आपने वायलेंस को लेजिटिमाइज कर दिया है, विच इज़ वेरी सैड. मैं वही अभी पढ़ रही थी आपसे यहाँ पे आने से पहले कि हमने ना हर चीज़ का एक्सक्यूज़ दे दिया, और सबसे बड़ा डिफेंस जो होता है ना अगेंस्ट द विक्टिम इज़ ऑनर, विच रियली हर्ट्स मी. कि लाइक इतना कुछ होने के बाद आपको लगता था कि लाइक मे बी यू नो इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्शियस अबाउट whatever they're thinking. But it hasn't. If anything, it's made them braver. कुछ नहीं रुक रहा ना. कुछ भी नहीं. Every day there are rapes, there are killings. Pedophilia को तो हम एड्रेस ही नहीं करते. नेक्रोफीलिया भी हो गया. नेक्रोफीलिया मेरे ख्याल से कि अब आप उधर भी नहीं है. You're not even like safe in your own grave. How sad is that? Animals are not safe. Animals are not safe. ये देख लें. अपनी पता नहीं किस तरह की आप लोगों को मतलब मज़ा आता है कि इतना सेडिज्म हमारे अंदर आ गया कि हमें दूसरी या मासूम जान को तकलीफ़ पहुंचा के हमें मज़ा आता है. तो इंसान तो बहुत दूर रह गया. हमें जब बेज़ुबान जानवरों का कोई ख्याल नहीं है तो फिर इंसान तो कुछ भी नहीं है. आपको पता है यहाँ पे लोग फ़न के लिए जानवरों को छत से फेंक देते हैं. जी बिल्कुल पता है. और हमारे बच्चे रोड़े लेके पत्थर लेके उनके पीछे भाग रहे होते हैं. जूते बच्चों का मारते हैं. कसूर नहीं है, कसूर उन माशरे का है जहाँ पे बचपन से इतना वायलेंस उनको प्लेजर दे रहा है. हाँ ये तो है. ये आई थिंक वही ना सडिस्टिक जो हम लोग हैं वो इसीलिए है क्योंकि आई डोंट नो हम कब इतने वायलेंट हो गए और हमें कब इतना मज़ा आने लग गया दूसरों को अजियत पहुंचा. आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपेंस इवन व्हेन वुमेन फेस मतलब ये जब उनकी पिक्चर्स गॉड फॉरबिड लीक करते हैं लोग या उनके बारे में ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप यू बीन इन द मीडिया फॉर सो लॉन्ग, जिस तरह के आपको कमेंट्स देखने पड़ते हैं, क्रूसिफाई किया जाता है, आपको मतलब कॉन्स्टेंटली प्रीच किया जाता है कि आपको इस तरह ड्रेसअप होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. एजिज़म के ऊपर आपको मतलब एजिज़म फेस करना पड़ता है, आपको बॉडी शेम किया जाता है. तो लोग आई फील
आपको अजियत पहुंचा के अपने आप को पता नहीं उनको कौन सा ऐसा प्लेजर मिलता है। तो मैं जब ये देख रही होती तो मैं कहती हूँ कि हम मतलब किधर से शुरू करूँ मैं, लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर सच पीपल। आपने किसी चीज़ पे भी तो कहीं पे भी तो मार्जिन नहीं दिया ना। यू हैव नथिंग नाइस टू से अबाउट एनीवन। वो आपकी कहते हैं ना, जहाँ जितनी ताकत चल सकती है और हर वाकई कोई में। चलाने की कोशिश करता है। और पेन में बहुत ताकत होती है। यार आप पेन डिडंट डू एनीथिंग, No, हालांकि नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की है। पेन अब वो किधर चला गया, इट हैज़ शिफ्टेड टू या टाइपिंग ना। तो कीबोर्ड वॉरियर्स आ गए हैं। हमारे पेन में तो बहुत ताकत थी, कुछ बड़ा रेवोल्यूशनाइज हम कर सकते थे, लेकिन हमने इंस्टेड और ज़्यादा हम रिग्रेशन की तरफ चले गए, क्योंकि हमने उसको अपनी एजुकेशन को, हमने अपने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा जो ये इस चीज़ में से निकाला कि हम और ज़्यादा किस तरह लोगों को डीमीन कर सकते हैं, और ज़्यादा उनको बुली कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा उनकी तजलील कैसे कर सकते हैं। तो हमने अपने पेन को ही गाली दी है, हमने अपनी एजुकेशन को गाली दी है। कुछ किया नहीं हमने पढ़ लिख के भी। पढ़े लिखे जाहिलों की तरह अगर आपने एक्ट करना है तो फिर कोई आपकी जनरेशन, ऑब्वियसली आप बच्चे बैठते होगे, बातें जी। करते होगे, क्या ज़हन में आता है कि एक हम बड़े सोचते हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे, अब पता चला इस एज में आके यार जो भी किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो व्हाट सॉल्यूशंस डू योर एज ग्रुप हैज़? आई ऑनेस्टली आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। इफ़ आई फील, पहले मुझे बड़ा लगता था क्योंकि मैं आई थिंक अबाउट दिस थिंग्स अ लॉट, आई थिंक टू मच ऑल द टाइम, आई एम अ पेंसिव पर्सन। लाइक मैं हर वक्त सोच रही होती हूँ कि टू अ पॉइंट आई हैव ड्रिवन माई सेल्फ इनसेन। आई हैव सो मच एनजाइटी, आई हैव सो मच एंगर, आई हैव सो मच पेन कि मुझे अब समझ नहीं आती है कि मैं घर से भी कैसे निकलूँ बाहर। लाइक इट मेक्स मी फिज़िकली सिक। तो आई यूज़ टू थिंक कि यार मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँ, मेरे पास पावर आ जाए, मैं ये कर दूँ, इस तरह चीज़ों को ठीक कर दूँ, इनको इस तरह मैं यू नो आई होल्ड सच पीपल अकाउंटेबल। नाउ दैट आई एम इन दिस एज आई रियलाइज कि चेंज जो आप चाहते हैं ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपने अपने आप को चेंज कर लिया ना तो बहुत बड़ा काम किया। दुनिया को चेंज करने मत निकले, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो एटलीस्ट आई कैन, और इफ एनीथिंग I can at least start changing myself for the better before going out changing someone else. तो अपने में क्या चेंज किया? टॉलरेंस लेकर आई हूँ मैं, एक्सेप्टेंस लेकर आई हूँ। पहले तो होता है ना कि सेल्फ लोदिंग में आप इतना ज़्यादा होते हैं। आई डोंट लिसन टू व्हाट पीपल से एनी मोर। आई डोंट लेट देम टेल मी हु आई एम, what my thoughts are. I'm in command of it now. I know my brain better. Also, no is a full sentence. That's it. ये आप सीख लें कि nothing is, no job, no opportunity is superior or bigger or better than your peace of mind, than your integrity. Never compromise on that. अच्छा, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ अभी, जो कि आगे आगे बहुत होगा भी, बट अभी इन दिनों में क्या नोट किया सेट्स पे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि चैनल्स पीछे होते हैं और इतना कंपटीशन वो हो गया है कि हमने पहले ये करना है, टाइम के कंस्ट्रेंट्स, इतने बजे पहुंचो, ये पहुंचो। इट इज़ अ टफ जॉब। It is. कि हमने इस टाइम पे ख़त्म करना है, स्क्रिप्ट वाइल ऑन एयर लिखे जा रहे हैं, यू नो कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। तो और द वे यू आर ट्रीटेड एज एक्टर, आपके जहन में बड़ी होती है कि एक्टर की लाइफ ही होगी, लेकिन एक्टर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। सो व्हाट डिफ़िकल्टीज यू फेस्ड, एंड कौन सी अच्छी बातें भी तुम्हें लगी कि हाँ हमारी इंडस्ट्री में ये भी तो है? मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने एज सच कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं बर्दाश्त की, क्योंकि मुझ जैसा बंदा ऐसा है कि लाइक आई सेड कि आई नो माई सेल्फ नाउ, लाइक आई नो माई ब्रेन। मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, मुझे पता है मैंने कहाँ पे बैक ट्रैक होना है, मैंने कहाँ पे 10 कदम पीछे हो जाना है, मैंने कैसे अपने आप को सिचुएशन से एक्सट्रैक्ट करना है।
I know that I am the only one who has to take care of myself. Nobody else is going to do that for me. And nobody can make you happy. You have to हाँ, make ये yourself जो ना happy. सेल्फ वर्थ आपकी जो होती है ना, वो आपको तभी अंदाज़ा होता है जब आप सेल्फिश होके पहले अपना सोचते हो, फिर कम्युनिटी का सोचते हो सेल्फलेस होके. हमें पहले से सिखा दिया जाता है कि बी सेल्फलेस. आप Especially women. हाँ, आपने बेलॉस होना है, अपने हर रिश्ते में बेलॉस होना है, माँ बाप के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ, इंसान के साथ आपने बेलॉस होना नहीं हो सकते आप जब तक आप अपने साथ बेलॉस नहीं हो, सेल्फिश हो के. You have to love yourself, you have to forgive yourself, you have to, acknowledge your existence loudly, and then only you can give back to your community or your society. So I feel कि मेरे अंदर अब वो इतनी करेज और इतनी स्ट्रेंथ है कि मुझे जो चीज़ सही नहीं लगती मैं बोल देती हूँ. लेकिन मेरे साथ अगर मुझे लगे भी कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है तो मैं उधर ही रोक देती हूँ. आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लेकिन जहाँ तक जितना मैंने काम किया है, टच वुड, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले. आई मीन अगर मैं नदीम बेग की बात करूँ, आई मीन कमाल ना. he is a father and a mother on set. It's seriously. I 101 सवाल पूछती हूँ मैं उनसे, and he is always like there, ready to answer all my questions. He's really fond of you. Is He he? was really talking high of you. I love Nadeem. And then Musaddiq, Musaddiq. again, such a darling. Musaddiq is amazing. Musaddiq is just mad. Like he is the coolest guy I know. So and he's very creative. आपको पता है कि जहाँ पे वो एकदम से गुस्सा करेगा, उसको पता है ही हैज़ अ हार्ट ऑफ अ बेबी एज वेल, तो वो फ़ौरन आपके साथ चीज़ों को भी ठीक कर लेता है और वो आपको बहुत हेल्प करता है. एंड ही हैज़ टेकन केयर ऑफ मी. In a city like Karachi, you feel really intimidated by the setting and the people, and especially if you have no one there. So Musaddiq was there to take care of me. He had my back. So I mean, I'm really grateful for that. And even the actors, I feel amazing actors. I mean, I had such a wonderful time with all of them. Sabaa Appa to I love. I could not believe that I was sharing the same, screen with her. Like I was in the same, space as her. Like I was sharing her space. Like I was in the same place as she was, like staring right back into my eyes. I was like, even if you kill me right now, I'll die happy. But no, she's such an institution. Oof. I've learned so much from her. मेरा पहला प्ले उनके साथ था. क्या बात है? क्या बात है? Like you elevated. No, मेरा पहला प्ले उनके साथ था. I worked with her a lot and I've always, मतलब हमेशा से मुझे तो पता था कि उन जैसी एक्ट्रेस कोई नहीं है. और इस उम्र में उनको उनकी वर्थ का रोल जब दिया है तो उन्होंने, यार आपने देखा है उन्होंने क्या कमाल किया है. लाइक जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिली ना, मैंने कहा कि यार ये मुझसे बात करे ना करे, आई एम इन लव विद हर. लाइक लुक एट हर यार. And then I was constantly noticing her. I observe a lot. तो मैं जब थोड़ा सा ना, मुझे लगा being an over smart that I am कि मैं क्यों देती हूँ, कहती नहीं तो मेरी लाइट ब्लॉक करे. हमने let me extract myself from this situation. I'm really embarrassed. I'm like I'm trying to give her a cue. Like she already knows. Like वो जिस तरह से आपको देखती she knows. She knows. And I was like, then when we थोड़ा सा हम easy हो एक दूसरे के साथ, हमने ice break की. Then I told her, listen, I'm a big fan. मैं आपको गिनवा सकती हूँ. Your comedic timing, you're such a good. तो मैं ना उनको गिनवाने लगी. मैंने कहा तो आपने फैमिली फ्रेंड में इस टाइम पे ये किया था, ऐसे किया था. यार आप क्यों नहीं और ऐसे बनाती हैं? आपसे अच्छा कमेडियन तो कोई है ही नहीं. फिर आपने इस ड्रामे में ये किया, उस पॉइंट पे आपने ये किया. तो एकदम से ना बालों में रोलर से कहते नदीम शी नोज, इसे कास्ट क्यों नहीं करते नेक्स्ट मेरे साथ. बस अब मैं कुछ नहीं कहूँगी. और वैसे भी ये this is a sense of humor by the way. I love it. Oh. I love it. I love that straight face sense of humor ना, वो बहुत कमाल होता है. चलो अब थोड़ी सी लाइट बातें करते हैं to know you more. Describe a perfect day for you. What would be a perfect day? Perfect day. Alone with my books or my dog. That's it. I do not like going out. I do not like people coming over. I like to be in a recluse. तो मुझे किताबों का बहुत शौक है. मैं कोई अच्छा सीज़न देख लूँ. I order in and I'm home. That's it. I don't believe this. You are exactly like me. यार अभी तो बहुत छोटी हो, इसमें तो enjoy But करो. I was always like this, Ifat. हमेशा से मैं ऐसी थी. My sister is a polar opposite.
शी इज़ अ क्राउड पुलर, और मुझे क्राउड में देख के ना आई एम अबाउट टू फेंट, मुझसे नहीं होता. आई हैव वेरी फ्यू पीपल अराउंड मी दैट आई कैन ट्रस्ट. या आई कैन नॉट बी अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल. तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हो? I am reading Stars from Another Sky by Saadat Hasan Manto. Oh wow. It's such a phenomenal I read. know. सबके I mean. पढ़े हुए ना आपने? Of course, कमाल of है यार, course. कमाल है. सब कुछ पढ़ा है सादत हसन मंटो का. उनके अफसाने पढ़ना. कौन सा फेवरेट अफसाना है आपका? मेरा है ठंडा गोश्त. काली शलवार. हाय, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल दहला देने वाला है. और कौन से राइटर्स पसंद है? I love Elif Shafak. Solely because उन्होंने 40 Rules of Love. और उसके अलावा आई लव खालिद हुसैनी एंड द माउंटेन्स एकोड, उनकी बुक है, इट्स सो फिनोमिनल. देन आई लव अंगारे, वो 5 डिफरेंट ऑथर्स ने साथ लिखी थी, उसमें भी उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं. हाँ जी, वो उस दौर की थी, बैक इन द 30s और 40s, तो ये बैन हो गई थी किताब. उस टाइम पे इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी उन्होंने काफ़ी तहलका मचा दिया. तो चलो फिर बुक एक्सचेंज करें. Definitely. I have a huge library. ओके. So you like Urdu literature? पहले मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती थी, क्योंकि बेसिकली हुआ ये था कि मुझे यही नहीं पता था कि बानो कुदसिया की राजा की इज़ सच अ फेमस बुक. तो जब वो मैंने पढ़ना शुरू की थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. Really? हाँ, क्योंकि सैडली मैंने उर्दू लिटरेचर उस तरीके से नहीं पढ़ा. उर्दू ही नहीं पढ़ी ना आप बच्चों ने? नहीं पढ़ी है. Okay. लेकिन लिटरेचर जो है ना, क्योंकि वो काफ़ी डिमांडिंग है, वो तो हम वाली थोड़ी ना कि जो हमें तो टाइप में हाँ. चले गए हम. अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उर्दू में ही पढूं, वरना मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ वो पढ़ लेती हूँ, तो इट्स वेरी सैड. आई नीड टू रीड इन माई ओन लैंग्वेज. और मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी स्टार्ट रीडिंग कुरतुल एंड हैदर. कुरतुल एंड हैदर? ओके, फाइन, डन. आई विल. अच्छा, व्हाट्स द क्विकेस्ट वे टू लूज योर ट्रस्ट? क्या बात है कि जिसके बाद तुम किसी को माफ नहीं कर सकती? When they lie and then they keep justifying their lies. अगर पैसा ना मसला हो तो सबसे पहले किस चीज़ पे खर्च करोगी? ये थोड़ा सा आपको लगा कि मैं बहुत ही वो हो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आई वांट टू हेल्प पीपल. है ना? या आई रियली डू. एंड व्हाट इज योर नियरेस्ट टू योर हार्ट philanthropy cause? Animals. Now that I own a pet myself, अब बहुत दुख होता है. है ना? उफ, इट चेंजेस यू. आप दुनिया कैसे देख रहे हो, वो सारा उसका ना, मतलब आपका जाविया बदल देता है. तो या, एनिमल्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम इफ गिवन द चांस. बिट्रेयल कैसे हैंडल करती हो? आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट. हाउ कैन यू हैंडल बिट्रेयल? टूट जाती हो? completely. लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी गलतियों से. यू कांट कीप गिविंग द सेम पीपल chances for the same mistakes. So make better mistakes. Don't believe in second chances? I do, not anymore. With the same people. सेकेंड तो नहीं, थर्ड फोर्थ भी हो जाता है ना, लेकिन अब आई थिंक एज यू एज आपको थोड़ा समझ आ जाती है कि यार मतलब सेकेंड चलो दे दो, थर्ड का सवाल नहीं उठता. आई एम अ बिग बिलीवर इन सेकेंड चांसेस, लेकिन फिर आपको खुद भी समझ आ जाती है ना कि ये डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं. कुछ इंसान नहीं डिज़र्व करते, आपका पहला भी चांस डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आप फिर भी उनको दे देते हो. आई थिंक इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम योर ओन ब्रोकननेस. माँ बनने का बहुत शौक होता है ना आपको दूसरों का, कि यार कहीं से मैं इनके ट्रॉमाज हील कर लूँगी तो मेरा भी इनर चाइल्ड वो हील हो जाएगा. आई स्टॉप डूइंग दैट. जब आप ख़ुद बहुत ब्रोकन होते हो या आप हील नहीं आपने किया होता, तो आप फिर उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हो. एंड दोज काइंड ऑफ पीपल आर नॉट रियली देयर टू अपलिफ्ट यू, दे आर देयर टू डिप्लीट यू. तो मैं बहुत डिप्लीट हो गई हूँ. तो अब जब अपनी सेल्फ वर्थ थोड़ा सा अपने आप को हील किया है, तो मुझे समझ आ गई कि यार नहीं, जाना ही नहीं उस रोड पे. Learned your lesson. द हार्ड वे. अच्छा, morality. Is it learned or inbuilt? Both. It could be learned? It can be learned, it can be unlearned, it can be relearned. Yeah. What do you think? I want to know that.
Yes, I agree. है ना? People can change. लेकिन देखा मैंने बहुत कम है. हाँ, not all of them have that. मैंने बहुत capacity. कम लोगों को चेंज, एंड अगेन एज यू सेड के आप अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं. सो इफ आई हैव बीन एबल टू डू दैट विद माई सेल्फ, तो मुझे लगता है इतना मुश्किल तो नहीं है. कमिटमेंट होती है ना. आई फील पीपल आर स्केर्ड ऑफ कमिटमेंट. और अपनी गलती मानने का भी हौसला होना चाहिए. इफ़ एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ वहाँ पे शुरू हुई जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि यार देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद मी. Yeah. Not everybody has the ability to accept. Yeah. So they are very good at pretending. Yeah. और अपनी ज़िद पे कायम रहने के लिए कि मैं ही ठीक हूँ, आप इतनी गलतियाँ कर जाते हैं और आप इतने सख्त दिल इंसान बन जाते हैं. आई थिंक एम्पथी एंड थिंकिंग टू दूसरे के शूज़ में जाके सोचने की एबिलिटी होना, ये बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है ना. हु वांट्स टू डू दैट? बहुत टफ है ये पूरा प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी टफ. आई डोंट थिंक यू हैड इट ईजी. नो आई डोंट. एग्जैक्टली. पता भी लगता है ना कि लाइक इसने अपने आप पे बहुत काम किया, अपने आप को तोड़ा है, फिर बनाया है, फिर तोड़ा है. वो कौन करना चाहेगा? एम्पैथी भी आप इंसान को तब तक नहीं दिखाते हो जब तक आपका कोई उनसे काम ना हो ना. हर चीज़ को तो अनफॉर्चुनेटली हमने ट्रांजैक्शनल बना दिया है. Yeah. तो अब असल क्या है नकली क्या पता ही नहीं चलता, सब एक जैसे लगते हैं. और ये बात भी तो बड़ी मुश्किल हो गई ना प्रूव करना कि कौन सही है कौन वही गलत ना, है. वही. और ये एक्सेप्ट कर लेना कि शायद यार मैं ही गलत हूँ, ये होता ये है बहुत ना. ज़रूरी है. और आपको पता है कि दूसरी बात ये इफ़त, आपकी इसी बात से मैं ये बात करना चाहूँगी. आपको एक्सेप्ट तो चलो आप कर लो कि मैं गलत हूँ, लेकिन जब वो गैस लाइटिंग हो रही होती है ना कि मसला आप में है, नहीं तुमने गलत सोचा. मुझे लगता है जो एक नार्सिसिस्ट होता है आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत से मिले होंगे, मुझे भी बहुत से मिले हैं. जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, दे हैव दिस अमेजिंग एबिलिटी टू मेक यू लुक लाइक द बैड गाय Gaslighting? और लाइक यू क्रेजी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि देयर इज समथिंग सिवियरली रॉन्ग विद मी. आई एम द वन हु इज डूइंग इट रॉन्ग. आई हैव हैड इट ऑल रॉन्ग. तब वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? लेकिन अब आपको पता चलता है कि गैस लाइटिंग, हमें तब टर्म्स का नहीं पता था नहीं ना. पता था. पर यार गैस लाइटिंग बहुत होती है. Yeah. बहुत होती है. और सिर्फ उन रिलेशनशिप्स में नहीं, हर तरह की, इवन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में. ओहो, ऐसी वैसी. आई मीन या बहुत ज़्यादा. स्पेशली आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ तो आपकी अलग है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ हो रहा होता है ना, आप कहते हो आई एम नॉट दैट स्टूपिड. Yeah. यू थिंक आई एम दैट स्टूपिड. यू कांट कॉल इट आउट बिकॉज नार्सिसिस्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो फ़ौरन अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेता है. मेरा ये मतलब तो नहीं था. एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जोक. यस. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जोक. दैट डिसरिस्पेक्ट का जो पहली लैडर है ना, जो पहला स्टेप है उस लैडर का, इट स्टार्ट्स विद अ जोक. यस. कि मैं टेस्ट करूं मैं और कितना कर सकता हूँ. नहीं, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था. मैं तो मजाक कर तुम रहा ही था. पागल हो. तुम्हारी तुम सोच पागल. कैसी है? कितनी अजीब यार, इतनी रिग्रेसिव यार. हाँ. तुम मुझे ऐसा समझती हो? देख हाँ तुम हो ऐसे. हार्ट ब्रेक हुआ है कभी? बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा, हर तरह से हुआ है. So how did you deal with it? I realized how sacred it is not to break someone else's heart. मुझे तब कदर ज़्यादा हुई. और मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरी, मेरा छोटी उम्र से ही दिल टूट रहा है. क्या मतलब है? Tell us. सबसे पहले आपका दिल तोड़ते हैं आपके टीचर्स. Yes. Yes. सबसे पहले आपका दिल वो तोड़ते हैं. फिर कहीं ना कहीं आपके माँ बाप तोड़ते हैं. फिर बहन भाई तोड़ते हैं. फिर आपके इर्द गिर्द के रिलेशंस तोड़ते हैं. फिर जिसको आप पसंद करते हैं वो तोड़ते हैं. आपके फ्रेंड्स तोड़ते हैं. कॉलीग्स तोड़ते हैं. इतना तोड़ देते हैं. फिर आपको जब तक कोई सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपके पास कुछ होता ही नहीं है. आप कहते हो मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ यार. आई जस्ट डोंट नो हाउ टू अनलर्न ऑल ऑफ दैट, हाउ टू स्टार्ट अगैन. ओल्ड ट्रिक्स बिकम न्यू ट्रिक्स. कुछ समझ नहीं आती. बट व्हाट आई लर्नड इज़ के जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो, आप वैसे ही दूसरों को ट्रीट करो. दैट्स इट. And no for disrespect, be it anyone.
Be it anyone यार. Be it anyone. हाँ, अगर आपको नहीं पसंद है ना, कभी कभी I feel इफ़त you need to show somebody their place because वो भूल जाते हैं ना. Yeah. कभी कभी it's important. Be firm and polite as my dad says, लेकिन sometimes you have to be very firm. Oh yes. Very On certain firm. things. On certain things. उस पे तो कभी give up नहीं करना. नहीं, तो मैं I do not claim to be a very righteous person. I mean, I'm not. I have my demons. When the light goes out, my demons come out. I have a chink in my armor too. I can be aggressive. I can be very angry as well. I'm a human being. I will not be correct all the time. लेकिन अपन जहाँ पे there are certain people who are truly asking for it कि आपकी वो niceness को जब underestimate कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको होता है नहीं, please back off. Enough is enough. Enough is enough. Don't take my niceness as a sign of weakness. I mean, I'm not weak. I can put you back in your place in a second. And then I can see that. yeah. करती होगी. मेरी अम्मा ये कहती है अल्लाह के वास्ते मेरी नाक ना कटा दे. अच्छा, what is, I know it's a cliched question nowadays, but what is feminism for you? इक्वल राइट्स यार. Exactly. बस यही है. इस्लाम भी यही कहता है कि इक्वल राइट्स दो भाई. फेमिनिज्म आपका इस्लाम दोनों सेम चीज़ें ही प्रीच करते हैं. जो अभी का कुछ और जो फेमिनिज्म बना हुआ है वो कुछ और ही हो गया लेकिन है. जो बना हुआ है वो उन्होंने बनाया है जो इसके अगेंस्ट है. मे बी मतलब जब हमसे पूछते हैं या आपसे पूछेगी तो हम तो ये कहते हैं सिर्फ इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. Basically यही है. Violence against the weaker people. I mean, we are weak. How are we? Physically. बस सिर्फ फिजिकली वी आर वीक. मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हैं. हमारे मेंटल मसल ज़्यादा स्ट्रांग है. Yes. लेकिन आई फील कि बस हम सिर्फ इस बात पे कहते हैं कि यार इक्वल पे हो जाए भाई. अगर आदमी की फैमिली है तो औरत की भी तो फैमिली है ना. देयर आर सो मैनी मेट्रियार्कल हाउस होल्ड्स दैट वी नो. अगर आप अपने लोअर क्लास में देखें, मुक्के भी खा रही हैं अपने मियाँ से और घर भी चला रही हैं. वो मेट्रियार्कल हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे मियाँ कुछ नहीं कर रहे. और जितनी भी आपकी हाउस हेल्प आती है वो सारी सबकी सेम स्टोरी होती है. सबकी same story हाउ है. इज इट? मतलब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता. हाँ ना? कि मतलब मेरे तरफ ऑनेस्टली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. बस्टेड लिप, ब्लू आई, आई एम लाइक व्हाट हैपेंड. बस आप फिर क्या कहते हो? आप आगे से कहते हो आप अभी भी बोल रहे हो कि नहीं है. लेकिन फेमिनिज्म इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मार्च हो रही है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं हो रही. वो सिर्फ इतनी हो रही कि यार एक तो इज्जत, इक्वालिटी दे दो यार. चाहे वो काम में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, घर के डिसीजन मेकिंग में Decision हो, making बच्चों में को हो. बड़ा करने के डिसीजंस में हो. भाई हर जगह पे आपको बस एक राइट आप मांग रहे हो ना कि यार हमें निगलेक्ट ना करो, इग्नोर ना करो. हमें लेसर ह्यूमन ना समझो. हमें इन्फीरियर ना समझो. हम नहीं इन्फीरियर. एनीवे, डेमोक्रेसी क्या हो? मुझसे ना पूछो. वो क्या होती है? डेमोक्रेसी होती भी है. अमित अ लेजेंड. खुदा का वास्ते मुझसे मत पूछे. तो फिर ये भी ना आप पूछे. आप मुझे बताएं. द नेशन वांट्स टू नो डेमोक्रेसी क्या होती है. यार ऑब्वियसली जो होती है वो कभी देखी नहीं है तो बता नहीं सकती. And it's all over the world, by the way. हाँ. It's all over. We the can't world. really say कि it only happens Yeah. here. It's all over. Yeah. Yeah. Okay. Favorite age कौन सी है ज़हन में? अभी तक जितनी एज है. 40s. Why? I can't because मुझे ये लगता है फत कि जब मैं 20s में थी अपने, मुझसे ज़्यादा खपती इंसान कोई था नहीं यार. Stupid था ना. I hated my 20s so much. Yeah. I wanted to put an end to my life every day when I was in my 20s. I was like, ये क्या कर रही हूँ मैं? क्या चीज़ हूँ यार? ये what is happening? ये हो क्या रहा है? Every day I was like, जैसे alarm like you know the moment the alarm would go off, I'm like, what is my life? Who am I? What am I? Like existential crisis इतना ज़्यादा था मुझे कि मैं कहती मैं क्या कर रही हूँ? मैं हूँ क्या? मैं अपने आप को देख कहती थी तुम एग्जिस्ट भी करते हो या इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन. बट ऑनेस्टली इफ़ यू कैन सर्वाइव योर 20s यू कैन सर्वाइव एनीथिंग. आई फील कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी आपकी एज होती है 20s में, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हो.
इतना कुछ आपके अंदर तब्दील हो रहा होता है, इतने आपके आइडियल्स शैटर हो रहे होते हैं, ऐसी ऐसी रियलिटीज़ आपको हिट कर रही होती हैं। तो 30s में जब मैं पहुंची तो मैंने कहा इट्स अ मिरेकल टू बी इन माई 30s एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड आई कांट वेट टू बी इन माई 40s. आई वॉन्ट टू ग्रो. You're looking forward to be Naughty 40. Yes, I am. अच्छा, तुम्हारे पास सबसे worst thing about your personality? मैं पीछे पड़ जाती हूँ हाय चिच्चड़ हो. बहुत ज़्यादा. कब जब मैंने पढ़ना होता है, Okay. एक दफ़ा मुझे चिच्चड़ बनने दो, उसके बाद जब मेरी ठंड पड़ जाएगी ना, मैं खुद ही कहूँगी ठीक है. लाइक विद ओनली दोज पीपल दैट आई लव. Okay. मैं बहुत खपती हूँ, कंप्लेन करती जाऊँगी. उसके बाद टू अ पॉइंट कि मेरी माँ कही तेरे साथ ना 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जा सकता. But don't you think इस तरह complaining person जो होता है वो लोगों को अपने से दूर करता जाता है? मैं करती नहीं हूँ सबके साथ, एक या दो नहीं. Where you know I can get away with it. वही ना कि मैं, और फिर मैं बोलती भी, मैं भी गैस लाइट करती हूँ. आपके अलावा मैं किससे बात करूँ? कौन है मेरा? तो कहते या अल्लाह. तो मुझे अपने अंदर ये बात लगती है बुरी कि मैं कभी कभी बहुत इमोशनली चार्ज हो जाती हूँ, and I say things that I don't mean. लेकिन I'm very honest. मुझे ये लगता है अंदर से ना, मेरा I have so much love to give Iffat. I'm very loving. A lot of people don't know that क्योंकि I have a very straight face and I don't let everyone into my world. लेकिन those who know me, they know I love fiercely. तो फिर उनसे थोड़ी बहुत ना मैं लीवे ले लेती हूँ कि यार let me harass you थोड़ा I know. सा. And your parents are the, you know, वो तो बेचारे they are there. जो मर्जी कर लो. And I feel कि सबसे ज़्यादा हरास मैंने उनको किया है. सब करते हैं. सब हमने करते भी किया, मेरी बेटी ने मुझे किया, उसके बच्चे उसे करेंगे. और मुझे लगता है कि करना चाहिए. क्यों नहीं? क्यों पैदा किया था? हाँ, मैं ये कहती हूँ खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? मैं कहती हूँ oh my God, what Elena? मैं कहती sorry. This is the wrong one. मैं तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई. मैं कहती what? Okay. Smartest or richest? Smartest. If you're smart, you can be rich. Well, I believe if you're rich, you can hire all the smart people. You're such a... Who's that person who said that? Bill Gates. You're such a Bill Gates. My great minds think alike. Wow, very good. You want to see the future or change the past? Pehle I wanted to change my past, but now I want to see the future. Logic or emotion? It's better to be logical. Emotional बहुत हो गए. Painful truth or comfortable lie? Painful truth always. Are you messy or tidy? I'm a bit of both. Okay. It depends. Depends on the your day. state of your mind. Yeah. Early arrival or late go? Fashionably late. Calling or texting? Texting, please. Cash or credit? Credit. Sunrise or sunset? Sunset. Chocolate or vanilla? Chocolate. Love or money? Love. Invisibility or flying? Flying. Books or movies? A bit of both. I love books and I love movies. Introvert or extrovert? I know. Ambivert. Oh. Thinker or doer? Some days I think, some days I just do it. Cat or dog? Dog. I love dogs. अच्छा मुझे बताओ, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी इंस्पिरेशन एक तो दूरदर्शन की फिल्में होती थी और पीटीवी के ड्रामे होते थे. तो हम ज़रा फिल्मी टाइप लोग थे ना. आपकी जनरेशन में, आई मीन यू स्पेसिफिकली, जी, क्या देखा था बचपन में? कौन से ड्रामे थे, कौन सी फिल्में थी? हु इंस्पायर्ड यू? शहनाज शेख, मरीना खान, बदर खलील. आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन. मेरे लिए तो सबसे मेरी अर्ली जो मेमोरी है ड्रामों की वो यही थी, धूप के नारे. फिर उसके बाद आई मीन थोड़ी सी अब मैं वो हो गई मतलब धूप के नारे, और इसमें तो मतलब हम जवान थे पर हम भी छोटे थे. सो ये तुम लोगों के टाइम के, हमारे टाइम में दिखाए जाते थे. ओके, रिपीट में दिखाए जाते थे. तो आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड कि ये इतने कमाल ड्रामे हैं. उसके बाद फिर अल्फा ब्रावो चार्ली था. देन वी हैड 3/3. Then we had Family Front, मेरा favorite. Then we had Ashiana. Ashiana तो I loved. Yeah.
Then we had Shashlik, Chiku and Mishi. Then we had Motor Chale Pum Pum. I had so many. I mean, इतने कमाल ड्रामे आते थे. कर्नल साहब की बेटियाँ. Then we had Zebo Nissa जैसे ड्रामे. कितने कमाल थे. जिसमें सानिया सईद आई थिंक घोस्ट बनी थी. सानिया सईद what an actor again. ओह, तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिन मतलब I've grown up watching. फिर स्टार प्लस आ गया and then यार शुरू में तो हमने देखा था वैसे, है ना? not gonna lie. हाँ. सबसे आगे हम बैठे होते थे. अब क्या होगा? You know, you used to get hooked to it somehow. अच्छा, बट मुझे ना ज़्यादा पसंद हॉरर शोज थे. कोई है, सोनी का आहट और जी हॉरर शो. जी हॉरर शो. और मेरी माँ कहती थी अब तुम लाइट ऑफ करके आओगी. मैं तबाह बर्बाद हो जाती थी एज अ चाइल्ड. हमने कहा हाउ कैन यू डू दिस? अच्छा, you like वैसे horror genre? I love it too. I love it. तो वैसे which horror film has really impressed you or left a mark on you, or you know? अच्छा, can I say that? And I hope you don't judge me, but The Conjuring. Do you like Indian cinema? I used to not anymore. Why? कोई स्टोरीज ही अब नहीं है आपके पास. When after 12 Fail and लापता Ladies, how can you say that? एक या दो आ रही है ना. आ तो रही है. वैसे उनका अल्टरनेटिव सिनेमा कभी देखा है? क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे उस पे अवेलेबल तो नहीं है. मैंने ज़्यादा नहीं देखा. तो You must. I will. You must. Their new actors, their new work is impeccable. लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट मूवी बताऊं जो अभी कुछ इन 10 सालों में आई है, दैट वुड बी पीकू. ओ हो. आई लव्ड पीकू. ओ हो. अगर आप मुझसे मेरा कोई ड्रीम रोल भी पूछे ना, तो दैट इज इट. अमिताभ वाला रोल. I'm not Amita. I see what you did there. Very bad. Very bad. But no, Irfan Khan वाला. Oh my God, ये आपने कितना स्नीकी तरीके से किया है. Good. Have you seen Pink? I liked it. Didn't you? Oh my God. I अच्छा, liked it. हमारे यहाँ genres नहीं है. अगर हो तो would you like to do a court drama or the hospital drama? Hospital drama. कौन है तुम्हारे फेवरेट सीरीज में से? Grey's Anatomy. Okay. So Alina, which actress really inspired you? Or actor? Actors में और मुझे दुनिया भर में से कोई बता. दुनिया भर में से हाँ, ना? हाँ. मेल एक्टर जिसने मुझे वाकई इंस्पायर किया, दैट इज़ इरफान खान. I love his movies. I just love the way the guy performs. And actresses में I would say Badr Khalil, Shahnaz Sheikh and Marina Khan. Then I also have Sania Saeed. Then I have Samia Mumtaz. There are so many women. When I look at these women, I'm like, yaar, they are goddesses, mashallah. Like, इनको acting आती है. ये they are the true artists and performers that I aspire to be like. So yeah. और जो contemporaries में है, उसमें तुम्हें कौन impress करता है? Sajal. है ना यार. What a fireball. She इतनी is. She's a energy. firecracker. मतलब कमाल है. यकीन नहीं आता ना जो छोटे छोटे न्यूआंसेस उसकी बहुत मजे परफॉर्मेंस की है. है. आपको यकीन ही नहीं आता. आंखों से करती है, बहुत मजे का करती और है. ऐसे यूं आराम से कोई एफर्ट नहीं है. बहुत No मजेदार. effort. बहुत मजा. इवन मीरा सेठी. हाँ. She's very pleasant. Yeah. यार मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के भी. And I'm so glad Vanessa is back. These are the few actresses that I actually admire. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के. ओके. और किसके साथ काम करने का दिल करता है दुनिया भर में से? दुनिया भर में से. हाँ. कि यार मजा ही ना आ जाए. यार अगर तो आप मुझसे ग्लोबल पूछें तो फिर मेरिल स्ट्रीप. हाँ. मैं पहले तो 3 दफा फौत हो जाऊंगी उनके सामने. बैक टू बैक मेरी मौत होगी, फिर मैं कुछ कहूंगी. एंड किस हीरो के साथ? कोई तो क्रश होगा. मैं क्रश वाले हीरो. डेफिनेटली टिमोथी शैलामे. हाय हाय. मेरा मियाँ कहता है बेटा बच्चा लगता है तुम्हारा. कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ. आई लव टिमोथी शैलामे. And what kind of roles you are hoping for in the future? Serious. Drama. ड्रामा. आई लव इंटेंस रोल्स. यार मुझे बहुत मज़ा आता है. आई वुड लव टू डू समथिंग दैट वुड बी इम्पैक्टफुल, दैट वुड लीव अ मार्क. मुझे अब लगता है कि जैसे कि अब हम जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं ना, आई मीन You have raised the bar for yourself. हैव आई मीन ये बहुत सब मैंने ना मुसीबत क्रिएट कर दी अपने लिए. तो मुझे ना ये लगता है कि अब आई फील कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है towards my audience. And I personally myself, I feel कि I've learned so much from all 3 characters कि I don't want to bring myself down by doing something that I cannot
connect with. Would you be able to say Yeah. things जिन पे तुम believe नहीं करती, एक स्क्रिप्ट आ रहा है उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं करना जो ही तुम्हें नहीं है। irresponsible लगती करना ही नहीं है वो, क्योंकि मेरी नदीम भाई से भी यही बात हुई थी। तो नदीम भाई एंड आई, ही अंडरस्टैंड्स माई ब्रेन एज वेल। इसको उनको पता है कि ये ना शी इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग, इसको क्यूरियस है, काफ़ी क्यूरियस है। और ही एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट। मैंने कहा नदीम भाई काम जितना भी हो कम आए पर अच्छा आए, क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी ऑलवेज। ही इज़ लाइक दैट्स हाउ यू शुड वर्क। द कैरेक्टर सफीना हैज़ ग्रैब्ड so much attention. I've had so many people, so many women sending me messages. मुझे अब समझ ही नहीं आई थी कि should I feel proud that I connected with so many of them या should I feel sad? कितना कुछ हो रहा है। और आपको पता है एक DM in like specifically एक DM in particular that grabbed my attention and that really disturbed me was कि उसमें उन खातून ने लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड मुझे टीवी नहीं देखने देते जब आपका ड्रामा होता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे साथ हूबहू यही चीज़ हो रही है। और वो गुस्सा करते हैं, उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन ले लेते हैं उस टाइम पे। वो उन दिनों में मुझे नहीं देखने देते, मैं उनसे छुप के यूट्यूब पे देख रही होती हूँ। और अगर उनको ये आवाज़ आ जाए कि मैं आपका ड्रामा देख रही हूँ तो देयर इज़ अ बिग फाइट। आई मीन इट इज़ अनबेरेबल कि जो सिचुएशन फिर अनरेवल होती है उस टाइम पे। तो कहती है मुझे छुप के देखना पड़ रहा होता है क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। एंड ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि मतलब ये ड्रामा नहीं देखना। तो मुझे इतना अफसोस होता है। देयर आर सो मेनी women that have actually even sent a message saying it's been 25 years and our situation is exactly like सफीना situation जो उसकी शुरू में थी। अभी तक हमारा 25 साल से वो फेज़ 1 ही चल रहा है। हुनैत की कहीं ना कहीं रिडेम्पशन तो होती है ना, आप देखते हो चेंज ऑफ हार्ट होता है, वो सबके लिए बुरा है। हाँ, वो अभी भी अपनी फैमिली में जो है वो है। ही इज़ नॉट गुड विद नूर बानो, ही इज़ नॉट, बट यू सी अ शिफ्ट इन हिम व्हेन इट कम्स डाउन टू हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड। उनके लिए वो चेंज हो रहा है। अ लॉट ऑफ women can't even, they haven't experienced that in the last 25 years. They're like हमने बच्चे जवान कर लिए, हमने उनकी शादियाँ कर दी, लेकिन आज भी हम फेज़ 1 में हैं। मुझे तकलीफ़ होती है। और एक ने तो मुझे ऐसा मैसेज किया that I had to share it on my story as well। कहती हैं कि आपको पता है मेरी माँ जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे वालिद साहब को जब पता चला कि एक फीमेल बेबी पैदा हुई है, तो कहते हैं कि पहले तो वो अबॉर्शन ही करवाना चाहे थे, लेकिन ऑब्वियसली हो गई। व्हेन आई केम इनटू दिस वर्ल्ड, मेरी माँ के बिल्कुल सामने उन्होंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उनको बेटा चाहिए था। मेरी माँ इसी गम से मर गई। एंड आई ग्रू अप विदाउट अ मदर इन माई लाइफ। आप जब ये सिचुएशंस देखते हो तो आप कहते हो यार आई विश ये ना हुआ था, काश मुझसे कोई कनेक्ट ना कर रहा होता, काश वाकई में ये सिर्फ हमारे दिमाग में ही होता कि इट्स जस्ट लाइक वाकई में ऐसा कहाँ होता है, कौन करता है ये। एंड देन देयर वाज अनदर वुमन दैट सेड कि तुम इतने बड़े मतलब you've made such a big impact in all our lives क्योंकि तुमने हम सबको आवाज़ दे दी। We're all you and it hurt me so much क्योंकि मुझे एक इंडियन खातून का मैसेज आया था। उधर तो और बेटियों का वो कहती हैं एग्जैक्टली, वो ये कहती हैं कि हम लोग सिर्फ बॉर्डर से डिवाइड हुए हुए हैं, इश्यूज वही हैं हमारे। और देन देयर आर women फ्रॉम कैनेडा जो वहाँ पे रह रही, कहती एग्जैक्टली ये। अब आई गो टू दिस प्लेस टू वर्क आउट, वहाँ पे देयर वाज दिस गर्ल, शी स्टॉप्ड मी। अब दिखने में शी इज़ अ वेरी मॉडर्न गर्ल, शी इज़ लाइक माई सिस्टर वॉज एग्जैक्टली लाइक सफीना अ फ्यू ईयर्स अगो। तो कहती जब हम देखते हैं ना तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं कि what they must have been going through, reliving. Imagine, so I have goosebumps here as well. तो आप जब कहते हो ना, then there were a few people in my friend list as well जिनको मैं unfortunately जानती हूँ। अब तो मैं unfortunately कहूँगी क्योंकि आप ऐसे लोगों से ना जो बड़े वोक बनते हैं और वो कहते हैं कि हम औरतों के साथ खड़े हैं, हमें राइट्स का पता है, जब वो मैसेज करके पूछते हैं ना what made you do this, ऐसा कहाँ होता है। एंड आई रिस्पॉन्डेड जस्ट विद द फोटो। मैंने कहा ये लो, ये वही वाली बात है ना, कहाँ मी टू होता है, हमारे साथ तो मी टू नहीं हुआ। नहीं, मैंने आई रिस्पॉन्डेड जस्ट विद द फोटो। मैंने कहा अब समझ आई कि अ मैन किल्ड हिज न्यू बॉर्न फीमेल जो उसकी बेबी गर्ल थी अलॉन्ग विद द वाइफ, क्योंकि उसने उसको 5वीं बेटी दी थी।
अच्छा ये होता है अभी भी? मैं कहा मैं ये कहाँ रहते हैं, कहाँ, मतलब नहीं, मैं बस चुप, मैं कहा क्योंकि आप अगर आपको नहीं लगता ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि होता ही नहीं है। कौन से रॉक के नीचे आप लोग हैं? मुझे भी उधर जाना है जहाँ पे ये नहीं होता। दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया भर की औरतें, चाहे आपको वो पता है ना जेंडर नंबर्स में हमारा मुल्क आखिरी, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से ऊपर है शायद। आई थिंक जेंडर इनसिक्योरिटी में वी आर रैंक बिटवीन 167 टू 170 में पढ़ रही थी। वो मेरे अफगानिस्तान से शायद ऊपर है। शायद अभी भी हम ऊपर हैं या शायद नीचे चले गए हैं या या साथ आ बराबर गए हैं हैं। या बराबर हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर लोग कहते हैं ऐसा कहाँ होता है, मैं ये- औरतों को कौन से राइट्स नहीं मिल रहे। जनवरी 2017 से 2018 तक चीपा और ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको रिकॉर्ड्स दिए थे कि 350 फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ है। Yes. 180 इन कराची। कहाँ से मिल रहे हैं? डम्पस्टर से। वो भी झूठ है और अभी ये रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड है, और सोचो जो जो मतलब नहीं है। कितना अनरिकॉर्डेड है। हाँ जी, तो 1 out of 3 फीमेल्स आर एक्सपीरियंसिंग जेंडर वायलेंस, और वो इसलिए क्योंकि बाकी रिलक्टेंट है रिपोर्ट करने में। एग्जैक्टली। और रेप केसेस आर सो अलार्मिंग, और अभी ये रिपोर्टेड हैं क्योंकि बहुत सारे आप रिपोर्ट भी नहीं करते क्या है आगे क्या होगा बच्चे का। और वाकई लाइफ वुड बिकम सो डिफिकल्ट फॉर अ बच्चा हु हैज बीन रेप्ड। आई मीन, पर आपको I पता don't है know. इफ़त, आई फील कि अब ना इट्स नॉट इवन अबाउट, मुझे लगता है जो अब वायलेंस शुरू हो गया है ना, दैट इज़ नॉट जेंडर रेगुलेटेड एनी मोर। या मेन एंड women आर एट द ब्रंट ऑफ दिस इक्वली। या मुझे लगता है कि बस जिसका जो जोर बन रहा है ना वो कर लेता है। या लेकिन 97% औरतें होती नहीं, हैं। ऑब्वियसली शुरू से ना, क्योंकि अगर आप वीकर है ना फीमेल और इन्फेंटिसाइड बच्चे, व्हेन वी टॉक अबाउट पीडोफिलिया, उसमें कोई जेंडर नहीं है। उसमें तो जेंडर नहीं उसमें है, कोई बिल्कुल gender नहीं है, एब्सोल्युटली Yeah. हाँ, उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप फीमेल इन्फेंटिसाइड, अब जिस तरह जब नूर मुकद्दम का केस हुआ था तो आमना बेग जो थी, शी वाज लीडिंग द केस, मतलब वो कर रही थी सारी इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने फिर उस टाइम पे फीमेल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया था जहाँ पे फीमेल्स आके अपने केसेस जो हैं वो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के हैं वो दर्ज करवा सकती हैं। और विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट यूनिट 550 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए थे। अगर आप अभी भी कहते हैं कि ये कहाँ होता है तो फिर और ये भी बस वो है रेत में दाने के बराबर। बिल्कुल है। बिकॉज बहुत सारी औरतें डोंट वांट टू बिकॉज के फिर शादी तो एंड है ना। शादी भी एंड है, ज़िंदगी भी एंड है, इज़्ज़त। वही जो कहते हैं ना कि जब कोई वायलेंस ऐसा कमिट होता है तो वही बता रही थी आमना कि इनका सबसे बड़ा डिफेंस होता है ऑनर। ऑनर कहते हैं हमेशा हमारे जो कल्प्रिट्स होते हैं उनका डिफेंस लाइज इन देयर ऑनर। और दूसरी बात ये है, इसीलिए हम औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खड़े होते हैं और आवाज़ निकालते हैं एजुकेशन के लिए, कि जो औरतें इन हालात में सिर्फ 2 नवाले रोटी के लिए बैठी हुई हैं, वो निकल के अपने आप को और अपने बच्चों को उस माहौल से इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। ये आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सफ़ीना का कैरेक्टर भी देखें हर बंदे की, नॉट एवरी वन गेट्स एज लकी एज सफ़ीना डेड, लाइक इन द शो। एटलीस्ट उसके हस्बैंड का एक कैरेक्टर आर्क था। आप देखते हैं कि जी रिडेम्पशन भी है, वापसी का दरवाज़ा भी है, लेकिन वो भी यही कहती है ना कि जितनी मेहनत हम इस घर में करते हैं उसका आधा भी हम बाहर कर लें तो हम अपना पेट पाल सकते हैं। और इस ड्रामे में जो है कि तीनों बहुओं का आपस में जो कमाटरी थी ना, दैट स्ट्रेंथ आई विश औरतों में हो। और ये कमराडरी आपने 22 कदम में भी देखोगे इफ़त, आप ये कुछ अनकही में भी देखोगे, या कमराडरी है और बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप क्यों, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह डिवोर्स भी ना औरतें इसीलिए नहीं अपनी एक्सेप्ट कर सकती या नहीं होने देते हैं क्योंकि इट लीड्स टू फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल आइसोलेशन। आप क्यों किसी को आइसोलेट कर रहे हो यार? आप अपने ड्रामों में के थ्रू भी डू नॉट आइसोलेट women और इवन men per se। आई मीन कमराडरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट यार। आपके घर में इश्यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने अपने इश्यूज़ दूसरे के ऊपर निकालने ही निकालने क्योंकि दे हैव इट ईजी। आई मीन सफ़ीना हैज़ सो मच गोइंग ऑन इन हर लाइफ, नूर बानो हैज़ so much going on in her life, but they all come together. Yeah. That's what's really important. Stop my मतलब
मेरा जो एक बस ये है कि what makes me really happy with doing all of these characters that I've done, कि stop pitting women against each other, stop doing that, it's a thing of the past, stop. आप थोड़ा सा ना मतलब you need to show this, you need to show कि we are in alliance with each other, we are allies, and great things happen when women. And women also has Yeah. to learn from the character of Saba कि how they go wrong in raising their kids. Definitely. और ये भी औरतों की एक इनसिक्योरिटी है when she is without a husband. तो Yeah. you know she's so insecure कि वो अपने औलाद को अपने इतना करीब रखना चाहती है. ये भी एक सोशल औरत को जो बना दिया जाता है ना, बच्चे उसके अंडर रहेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी. You know this all has to be unlearned. डेफिनेटली. और ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं कि ये होता आ ये रहा है बहुत होता है कि आपने ये भी सुना होगा कि जब मतलब कभी एक औरत एक ऐसे मतलब अब्यूजिव मैरिज में हो या उसकी एक मैरिज इज बड़ी अनइक्वल टर्म्स या पे चल उसकी रही हो, सास ने उसको बहुत बुरा ट्रीट किया. She Definitely. exactly becomes the same. exactly becomes the same. and how she weaponizes her kids Yes. कि जब मेरे बेटे बड़े होंगे ना तो फिर मैं फिर अपना बदला बताऊंगी. लूँगी. Yeah. शी इज़ नॉट रॉन्ग टू थिंक दैट क्योंकि उसका तो एंड गोल यही ना कि मैंने वेपनाइज करना है. बट दिस इज वेयर यू नीड टू लर्न. Like great things happen when women come together. Oh yes. Great yes, things happen. Yes, and great television comes. And Great stories come. come. Great movies come. Look at the West. They are all producing such amazing stuff. The actresses, you know, together. Nicole Kidman and Witherspoon and everyone. Look at them, yeah. Look They are at them. creating great cinema. Yeah. और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे, क्या काम हो रहा है? यार बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत स्क्रिप्ट्स आ रही है. I'm just. अच्छा, कोई ऐसा डायरेक्टर, आई नो यू लव नदीम बेग, मुसद्दिक, और उनका काम भी किया और करोगी भी, कोई और जिससे कोई ताल्लुक भी नहीं है पर उनका काम देख के यू रियली वांट टू वर्क विद? आई एम obsessed ना, मैं सबके सामने ये कन्फेस करूँ, आई एम obsessed with सरमद खुसर. And I want to let him know that I am dying to work with him. I love the stories he tells. I love his cinema. I love what he does. I'm obsessed with him since Shashlik days. I just love him. Cutie. I love him. For me, he's Chiku, and he's for me. Like I mean, he's like I just love him. मैं सरमद को बल्कि मतलब डायरेक्ट कह रही हूँ कि मिलो इससे. You love her. She's your type. Thank you so much, Elena. Lovely chatting. Thank you so much. बहुत ही मजा आया and I wish you all the best. Thank you. Because you deserve it. Thank you so much, Iffat. It was truly an honor. मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे इतना मजा आएगा. Thank you so much. I'm so happy You're amazing. to hear that. Thank you. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. Say it all with Iffat Umar.